ہم لوگوں نے کینیڈا میں ارباب قلم کے تحت کچھ پروگرامز کیے. 2010 میں ہم نے محفل کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے 2019 میں دوبارہ اس کا سلسلہ شروع کیا اور باقاعدہ اس کو ہم نے ایک انجمن کی شکل دے کر اور باقاعدہ جو ہم نے محفل کا آغاز کیا کووڈ سے ذرا پہلے 2020 کے آغاز میں. تو اس کے بعد سے ہم لوگوں نے مکالمے کی مختلف محافل منعقد کی اور ہماری کوشش ہمیشہ رہی کہ ہمارا کوئی ایسا جو بھی ہماری محفل ہو ایسی ہو کہ جس میں ہم جو ہمارے جو بھی ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان سے ہم کچھ بات چیت کر سکیں, کچھ سوال جواب کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں. ہم لوگ بھی ہمارے جو محفلوں میں شریک ہوتے ہیں حضرات اور خواتین, وہ لوگ بھی اگر جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکیں. آج کی محفل تھوڑی سی مختلف ہے, اگرچہ یہ بھی اس میں بھی ہمارا جو اصل جو ہمارا جو فوکس ہے, جو ہماری توجہ ہے, جو ہمارا زور ہے وہ گفتگو پر ہی ہے, کیونکہ حراس صاحب کی کتاب کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. دوسرے دور میں شعری نشست بھی ہوگی, لیکن پہلے سے بتاتے چلیں, ہم نے اس میں لکھا بھی تھا. ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ آج کی گفتگو ہے. ہم سننا چاہتے ہیں کہ جس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں کیا ہے. تو آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. انور بھائی, انور کاظمی صاحب, جنید اختر, سکندر ابوالخیر اور ڈاکٹر شمیم آذر, جو کہ اس وقت یہاں تو موجود نہیں ہیں مگر ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا پہلا دور ہوگا جس میں ہم کتاب پر گفتگو کریں گے. میں اس کے لیے سب سے پہلے دعوت دوں گا اپنے دوست ارباب قلم کے رکن سکندر ابوالخیر صاحب کو تشریف لائیں اور پہلے دور کی نظامت کے فرائض سنبھالیں. سکندر بھائی, بہت شکریہ. السلام علیکم. ہمارے پاس کرنے کے لیے چیزیں بہت زیادہ ہیں اور ٹائم بہت کم ہے. ہمارے پاس خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ٹورانٹو کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مایہ ناز اسکالر, محقق اور شاعر جناب تقی عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں, جو آج کے ہمارے پہلے حصے کی صدارت فرمائیں گے. بہت پرزور تالیوں میں استقبال کیجیے تقی عابدی صاحب. رفیع الدین راز صاحب تشریف فرمائیں. آج کے مہمان خصوصی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے ایک اور دوست اور بہت اچھے افسان نگار اور شاعر اور خاص اس پروگرام کے لیے نیو یارک سے تشریف لائے ہیں. استقبال کیجیے جمیل عثمان صاحب. مشیگن سے تشریف لائے ہوئی صوفیہ انجم تاج بھی موجود ہیں, جو شاعرہ بھی ہیں اور بہت اچھی فنکارہ بھی ہیں, آرٹسٹ ہیں. پلیز ویلکم صوفیہ انجم تاج. تو آج کی تقریب میں جو پہلا حصہ ہے وہ کتاب کے بارے میں ہے. راز صاحب کی کتاب بساط غالب, اور غالب کی زمین میں 200 سے زیادہ غزلیں کہنا معمولی بات نہیں, بڑے جرأت کی بات ہے. اس پر جو ہے مقررین بات کریں گے. کلیدی خطبہ جناب تقی عابدی صاحب کا ہوگا. تو میں سب سے پہلے صوفیہ انجم تاج صاحبہ کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب رفیع الدین راز صاحب کی شاعری ایک نئے قسم کے شعور کی آنکھ کے کھلنے کا نظارہ کراتی ہے. یعنی جناب رفیع الدین راز صاحب جو ہمیشہ ہی ایک تحیر آفرین تخیل دے کر سچ کی کھوج میں سرگرداں کرتے ہیں. چکبس نے کہا کہ وہ شب کی سیاہی کو بھی خوش رنگ بنا دے, یہ طرز تکلم, یہ ادا جس کو خدا دے. ایک ایک لفظ پر انفرادیت کی مہر چھپی ہوئی ہے. یہ شعر ان کا ایک حسین تعارف ہے کہ دلوں کے فاصلوں کو آؤ مل کر کم کریں ہم تم,
दिलों के फासलों को आओ मिलकर कम करें हम तुम, चलो चलते हैं फिर हम संग अस्वद रक्ति चादर में। और दूसरा एक शेर है कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। अब दश्त जामे हिज्र की एक शब गुजार आने के बाद ओस की एक बूंद लाया हूँ समंदर के लिए। तो आपके आलमी सतह पर आपको माना और जाना जाता है, और बहुत सारे इसनात सुफन में भी आपने अपना जोर बयान दिखाया है। नज़लें गज़लें माहिए हमदनात अफसाने इंशाइया सभी तहरीरों में कमाल दिखाकर उर्दू अदब के दामन को मालामाल किया है। न्यू जर्सी में फरह कामरान ने खास मेरे लिए एक फंक्शन किया था जिसमें जनाब रफीउद्दीन राज साहब सदर थे, और जिसकी मुझे बेहद खुशी हुई थी। आपकी मौजूदगी से उस महफिल में चार चांद लग गया, इसलिए मैं आपको फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शॉर्ट लिखा है इसलिए कि सब लोग मैं दरख्वास्त करूँगा जिमी उस्मान साहब से। अफसाना निगार है, 9 किताबों के खालिक और शायर हैं, टोरंटो से न्यूयॉर्क से तशरीफ लाए हैं खास इस प्रोग्राम के लिए। जिमी साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ऑनरेबल ख़ालिद साहब ने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और रफ़ीउद्दीन राज साहब के बारे में कुछ कहने को कहा। एक अपने ख़यालात के साथ मैंने इस छोटे से मज़मून में किया है। इसका अनुमान है कि रफ़ीउद्दीन राज हयात व कायनात का शायर। गालिब ने अपने बारे में कहा था, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नवाज़ा। और बरबिसात गालिब के शायर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि रिंदी से भी आगाह, शरीयत से भी वाकिफ़, पूछो जो तसव्वुफ़ की तो मनसूब का सामने। गालिब अगर शराबी न होते तो वली होते। रफ़ीउद्दीन राज साहब शराबी नहीं है, मगर उनके पास सिर्फ विलायत ही नहीं, तरीक़त है, शरीयत है, इबादत है और मोहब्बत है। तो तरीक़त की बात आती है तो वो कहते हैं कि या रब मेरी खलवत मेरी तन्हाई की खातिर आफाक की पहनाई में एक कौन मका हो। तो इस शेर में राज साहब ने अजीब बात कही कि उनकी रियाजत और तरीक़त के लिए ये जहान रंगूबू काफ़ी नहीं है। तो आफाक की पहनाई में उन्हें क्या चाहिए? घर नहीं, महल नहीं, शहर नहीं, पूरा मुल्क नहीं, वो भी नहीं, उन्हें तो आफाक में एक कौन मका चाहिए। तो शरीयत की तामील के बारे में फरमाते हैं कि चरागों से मुनव्वर अपने एहसासात करते हैं, जो शहर से करीब हैं आओ उसकी बात करते हैं, बरतते हैं इबादत की तरह एक एक धड़कन को, हम उसका जिक्र सोते जागते दिन रात करते हैं। बदन तहलील हो जाता है रंगो नूर में उस दम, जब उसकी ज़ात से मंसूब अपनी ज़ात करते हैं। सरे तस्लीम खम रखना है तुमको राज हर लम्हा, इताअत आशिना तामील इरशादात करते हैं। तो वल्लाह की शरीयत की तामील इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। और इबादत का रंग देखिए कि दर्द गम नगमा सरा है मेरी शरियानों में, एक एक सांस मेरी महव इबादत है अभी। और अच्छी तरह खबर है माबैन अब्द माबूद, अब कितना फासला है कल कितना फासला है। और मोहब्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज साहब को जो मोहब्बत है उसका इजहार अपनी किताब रोशनी के ख़त-ओ-ख़ाल में उन्होंने इन अल्फाज में किया है। वुसअते अफलाक से पूछे कोई शान हिरा,
مسکن صد آسماں ہے کنج دامانے ہرا، میرے آقا کاش ہوتے پھر سے مہمانے ہرا، اور بنا دیتا خدا آسی کو دربانے ہرا۔ تو دیکھتی ہے کیسے کیسے خواب میری آنکھ بھی، مرحبا صلی اللہ اے آئینہ اے روشنی۔ تو محبوب سے قربت کی یہ خواہش، قربت کی خواہش بھی ہے، اور ادب کا تقاضا ہے کہ کچھ دوری بھی رہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ خدا اس کے آستانے کا دربان بنا دے۔ راز صاحب کی جس کتاب سے میں نے یہ بند کوٹ کیا ہے وہ ہے روشنی کے خط و خال۔ ابو الخیر کشفی صاحب نے اس کتاب کو شاعرانہ انجیل کہا ہے۔ یہ کتاب 407 بند کی نعتیہ مسدس کی کتاب ہے، اور اس کے ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا شعر ہے جس کا دوسرا مصرع ہے مرحبا صلی اللہ اے آئینہ اے روشنی۔ یہ مسدس حالی سے ضخیم کتاب ہے۔ حالی کی مسدس کے ہر بند کا آخری شعر ردیف و قافیہ کے لحاظ سے الگ ہے، لیکن راز نے پورے 407 بند میں ٹیپ کے اس مصرے کو جس خوبی سے بنتا ہے وہ شاعرانہ تعلیق کی بہترین مثال ہے۔ یہاں میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کے مصنف ہیں گوہر ملسیانی۔ کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے سخن کا چراغ رفیع الدین راز۔ اس کتاب میں راز صاحب کے مسدس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نعتیہ ادب پارے کا ہر بند واقعات و احساسات کا احاطہ کرتا ہے، مگر ہر بند کے ٹیپ کا شعر اپنے مصرع ثانی کی گرفت میں ہے۔ یہ مصرع ثانی بار بار آتا ہے اور پورے بند کو مرصع بنا دیتا ہے۔ مسدس کی حیت میں یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ یہ تو بات تھی محبت کی، لیکن محبت کا ایک اور رنگ دیکھیے جو راز صاحب کے کلام میں جگہ جگہ آیا ہے، اور اس خوبصورتی سے آیا ہے کہ پڑھنے والا مسحور ہو جاتا ہے۔ چلا ہوں ذکر کرنے حسن کا آنچل کا بادل کا، غزل ہے آج کی قصہ ہے یہ گزرے ہوئے کل کا، جب ایک دستے ہنائی قسمت آیا میرے ہاتھوں میں، سمجھ میں پہلی بار آیا مجھے مفعول جدل کا، مخاطب تھی میری آنکھیں حیا افروز منظر سے، قریب جسم جاں مہکا ہوا پیکر تھا سندل کا، میرے قلب و نظر میں ہو بہو تصویر ہے اب تک، کھلی زلفوں کا وہ انداز وہ لہرانا آنچل۔ یہ دوسری محبت ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا۔ راز صاحب نے شاعری میں بہت سارے نئے تجربے کیے ہیں، مثلا ربائی کے تمام 24 کے 24 اوزان میں انہوں نے رباعیاں کہی ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں صرف 2 یا 3 شاعر ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ مزید یہ کہ ربائی کے 24 اوزان میں انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ اسی طرح آپ دوہے کو لے لیجیے، آج کل دوہے کا جو اصل ماترا ہے اس میں دوہے نہیں کہے جاتے۔ رفیع الدین راز نے تمام کے تمام دوہے اس کے اوریجنل بحر یعنی دوہا چند میں کہے ہیں۔ راز صاحب کا جو شعری سفر ان کی پہلی کتاب دیدہ خوشخواب سے شروع ہوا تھا وہ بروسعت غالب پر آ کے ٹھہرا ہے۔ جی ہاں، 21 کتابوں کے بعد آ کے ٹھہرا ہے، ختم نہیں ہوا۔ ان کا ذہن اب بھی زرخیز ہے اور غیر سے مضامین اب بھی خیال میں آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی غزلیں بہت سادہ ہوتی ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ دعائے نا رسا کے زخم پر رکھتا ہوں یوں مرہم، ردائے صبر اپنی خواہشوں پر تان دیتا ہوں، میری غزلیں بہت سادہ سے پیراہن میں ہوتی ہیں، قوافی کو عموماً میں ردیف آسان دیتا ہوں۔ مشفق خواجہ نے راز صاحب کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ آپ کی غزل اردو غزل کی بہترین روایات کی امین ہے، لیکن آپ نے روایت کی محض پاسداری نہیں کی، اسے آگے بھی بڑھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے حقائق پر آپ کی گہری نظر ہے۔ جو خیال بھی ذہن سے صفحہ کرتاز پر منتقل ہوا ہے وہ آپ کے اپنے ذاتی غور و فکر، تجربے اور مشاہدے کا تخلیقی اظہار ہے۔ یہ تخلیقی اظہار ایک ایسے لب و لہجہ کا آئینہ دار ہے جو منفرد بھی ہے اور تازہ بھی۔ گویا آپ کی غزل آپ کی اپنی غزل ہے، آپ کی آواز آپ کی اپنی آواز ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ غزل جیسے صنف میں انفرادیت اور تازگی کے چراغ روشن کیے جائیں۔ تو انفرادیت اور تازگی کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ راز صاحب کا شعر ہے کہ آنکھ میں آنے سے پہلے اشک میں ڈھلنے سے قبل، آنکھ میں آنے سے پہلے اشک میں ڈھلنے سے قبل، کتنی خاموشی سے پیراہن بدلتا ہے لہو۔ آنکھوں سے خون ٹپکنے یا لہو رونے کا خیال اساتذہ نے بھی باندھا ہے۔ میر نے کہا ہے کہ چشم خوگشتہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ امیر یہ آزار ہے۔
اور غالب کا مشہور شعر ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جواب کی سے نے ٹپکا تو پھر لہو گیا۔ لیکن راز سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ میں آنے سے پہلے لہو اپنا پیراہن بدل لیتا ہے اور سرخ لباس اتار کر سفید لباس زیب کر دیتا ہے۔ ایک اور بے مثال شعر دیکھیے کہ متائے آرزو اشکوں کی صورت آنکھ میں آ کر ٹھہر جائے تو گوہر ہے جو بہہ جائے تو پانی۔ تو ظاہر ہے آنکھوں میں آیا ہوا آنسو اگر بہہ کر لوگوں پر آشکار ہو جائے تو اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ آنکھ میں آئے گی اور بہہ گئی۔ تو مثالیں تو بہت ہیں لیکن صرف ایک اور کہ خو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا، خو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا، میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا۔ انسانی نفسیات پر یہ ایک بہت بڑا شعر ہے۔ بچے جب سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو باپ کی بہت ساری خصوصیات ان کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہیں۔ غم چھپانے کا بہترین طریقہ مسکراہٹ ہے۔ خو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا کہہ کر راز میں پوری کیفیت کا احاطہ کر لیا۔ بربساط غالب راز صاحب کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں۔ غالب کی زمین میں چند اشعار تو کہے جا سکتے ہیں، کچھ تضمینیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن 200 غزلیں کہہ دینا جن میں غالب کی زمین اور ردیف و قافیہ کا بھی خیال رکھا جائے اور ان پابندیوں میں رہتے ہوئے اپنی بات کہی جائے، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ کار مشکل کی بہت مصر ہے ترقی تخلیق، صرف غالب ہی نہیں سامنے ایک میر بھی تھا۔ لیکن راز صاحب نے نہ صرف یہ کام کیا بلکہ 200 غزلیں کہہ ڈالی۔ غالب سے ان کی عقیدت ان کے اس شعر سے عیاں ہے کہ غالب تیرے اشعار کی شہدا ہے میری فکر اور میری سماعت تیرے اشعار کی بھوک۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اردو شاعری کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑے گی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے جمیل عثمان صاحب جو یہاں سے تشریف لائے ہیں، اور اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے بہت ہی معزز محترم جناب تقی عابدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خلیجی خطبہ عطا فرمائیں۔ صاحب بزم محترم جناب رفیع الدین راز صاحب، میں سامنے کاغذات تو رکھتا ہوں لیکن بات کروں گا کیونکہ اہل ہنر اہل ادب سامنے ہیں۔ یہ جو ایک ہنرمند کو دوسرے ہنرمند اس کے ہنر کا اعتراف کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ شہر ٹورنٹو کے محترم تمام ادیب و صحافی و شعراء آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو گلے میں کوئی تمغہ ڈالنے سے اتنی عزت نہیں ملتی یا جیب میں ایک پاکٹ ڈالنے سے کوئی عزت نہیں ملتی جو ایک شہر کے ادیب آ کر گفتگو کرتے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب میری تصویر نے وہ دلی کا مشاعرہ مصفی جب جوان تھے، جب غزل کا ایک شعر پڑھا تو میر صاحب کی عادت تھی کہ اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے سر ہمیشہ نیچے ہوتا، تو خدا سخن نے کہا میاں ایک بار پھر پڑھو، بس یہ کہنا تھا۔ مصفی نے اس کو اپنے دیوان پنجم میں لکھا۔ یہ شہنشاہوں کی پاکٹیں اور پیسے اور ایوارڈ کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن مصفی نے یہ ذکر کیا کہ میر نے مجھ سے یہ شعر پڑھوایا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 130 سال پہلے جب علامہ اقبال کی عمر بالکل جوان اور لاہور کے مشاہرے میں ہمارا شاعر آپ کے پڑھ رہا ہے ایک غزل جو 1896 کی ہے، میں نے ابھی غالب اقبال کا کیا کہتے ہیں باقیات مرتب کیا ہے، تو جب وہ شعر آیا کہ جو مشہور شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، خطرے جو تھے میرے انفعال کے، میری شرمندگی میری ندامت کے جو خطرے تھے اس کو موتی سمجھ کر آپ کے، تو یہ شعر 130 سال کے بعد
کوئی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی اگر ارشد گورگانی کے اس شعر کی جو انہوں نے تعریف کی آج تک اقبال نے ہزاروں شعر انس دہلوی بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر امیر مینائی کہتے ہیں رامپور میں تم جانتے ہو یہاں انس لکھنوی بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا تو داغ نے سر پر ٹوپی رکھی اور امیر مینائی کے سامنے سے گزرے اور کہا حضور یہ داغ ہے یہ میرا کلام ہے اسے دیکھیے کہ آج سے 130 سال پہلے جب علامہ اقبال کی اور بالکل جوان اور لاہور کے مشاہرے میں ہمارا شاعر آپ کے پڑھ رہا ہے ایک غزل جو 1896 کی ہے. میں نے ابھی غالب اقبال کا کیا کہتے ہیں باقیات مرتب کیا ہے تو جب وہ شعر آیا کہ جو مشہور شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا خطرے جو تھے میرے انفعال کے میری شرمندگی میری ندامت کے جو خطرے تھے اس کو موتی سمجھ کر آپ کے تو یہ شعر 130 سال کے بعد کوئی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی اگر ارشد گورگانی کی اس شعر کی جو انہوں نے تعریف کی آج تک اقبال نے ہزاروں شعر انس دہلوی بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر امیر مینائی کہتے ہیں رامپور میں تم جانتے ہو یہاں انس لکھنوی بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا تو داغ نے سر پر ٹوپی رکھی اور امیر مینائی کے سامنے سے گزرے اور کہا حضور یہ داغ ہے یہ میرا کلام ہے اسے دیکھیے اگر پسند آئے تو کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ارباب ہنر ہمیشہ ہنرمند کی ہم عزت کر کر اپنا مقام بتاتے ہیں اور وہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے. تو رفیع صاحب آپ بہت مبارک بات کے ایک شاعر جس نے آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے شاعر ہیں 60 سال ریاضت ہیں 1963 1964 سے آپ نے شعر کہنا ہے. میرے اندازے کے مطابق 28 کتابیں ابھی تک اس میں آپ جانتے ہیں کہ آؤں گا تمام مسائل پر ایک ایک لفظ آپ میرا سنیے مستند ہوگا اور وہی جار پر آئے گا. غزلیں کہیں نظمیں کہیں رباعیات کہیں قطعات کہیں دوہے کہے انشائیت میں خادر الکلام شاعر ہے. خادر الکلام شاعر رفیع راز اس وجہ سے ہے کہ ان کو الفاظ پر وہی حکومت حاصل ہے جو معبود کو اپنے بندوں پر کسی لفظ کو توڑا کسی لفظ کو جوڑا کسی لفظ کو مصروں میں ایسا پروتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے. دیکھیے ہر لفظ کا ایک آرگینک ردھم ایک بنایت ہوتی ہے لیکن جب بڑا شاعر اس کو ایک مصرے میں پروتا ہے تو دیکھتا ہے کون سا مناسب لفظ آپ کے آ سکتا ہے. تو نعت کے شعر سے شروع کر رہا ہوں. مجھے بات کرنا ہے بساط الغالب پر سے تو میں اپنے عنوان سے کبھی نہیں ہٹتا. تو وہ جو سرمایہ سخن ہے وہ جو آبشار سخن ہے وہ جو ان کے 26 اور آپ کے انشائیہ وہ ہیں اس پر بات نہیں ہوگی صرف ایک کتاب پر ہوگی. تو کیا یہ کہ 200 304 مصرے جو خود پسند کیے اور ایک کمال یہ کیا کہ کسی مصرے پر طرح نہیں لگائے بلکہ مصرے کو آپ کے جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کر اس کو پوری طریقے سے غزل میں ڈھالا. اور آپ کی جو غزل ہوتی ہے وہ زیادتاً مردف ہے جس میں ردیف ہے اور غزل جو ہے تقریباً 13-14 شعر 12 اس سے زیادہ نہیں پڑتی. تو نعت کا شعر تھا غالب کا. غالب نے ویسے تو فارسی میں نے پورا آج سے 20 سال پہلے دیوان نعت منقبت غالب 800 صفحے کا آپ کی خدمت میں آپ انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں لیکن جس میں تقریباً 1500 سے زیادہ غالب کی طرح سے کون لکھ سکتا ہے معراج نامہ راز صاحب
251 शेर का पढ़िए, आपको तो मालूम होगा कि गालिब जैसा शायर ने मेराज नामा फारसी में क्या लिखा। वक्त नहीं है, गालिब ने 1100 शेर की जो आपके क्या कहते हैं अब्र गोहरबाल लिखी, वो पूरी आपके जो है विलायत से भरी हुई है, जिसमें नात और मनकबतें हैं। वो गालिब ने सिर्फ 5 शेर कहे नात के उर्दू में। एक शेर वो था जिसको मैं पेश कर रहा हूँ, राज ने, रफीउद्दीन राज ने उस पर तज़मीन की है। शेर था गालिब का, उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, वास्ते जिस शह के गालिब गुंबदे बेदर खुला। मेराज का जिक्र है, गुंबदे बेदर खुला। देख लिया आपने मिसरा गालिब का। अब आप देखिए राज ने उसको किस तरीके से खूबसूरत तरीके से रखा। याद है हदीस, हुजूर ने फरमाया था कि सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया गया। राज कहते हैं नूर में गूंदा हुआ एक खाक का पैकर था वो, नूर में गूंदा हुआ एक खाक का पैकर था वो, जिसकी खातिर राज बाबे गुंबदे बेदर खुला। ये कहते हैं, देखिए राज खादरुल कलाम शायर है, इसी वजह से गजल हो या नज़्म हो या दोहे हो या किताब हो या रुबायत हो, अंदाज ये होता है कि एक चीज होती है बात बरतना। शायर जो होता है फितरी शायर को मालूम होता है कि कौन सा लफ्ज मिसरे में किस तरह से लगाया जाए, जगाया जाए, रखा जाए। तो आप देख रहे हैं कि गजल जो सिंफ सुखन है, रफीउद्दीन राज गजल के शायर। क्यों कह रहा हूं गजल के शायर? बेहतरीन नज़में लिखी हैं, पूरा सरमाया है। अल्लामा इकबाल नज़्म के शायर हैं, जोश मलियाबादी नज़्म के शायर हैं। ऐसी गजलें कहते हैं कि कमाल है कि कोई लिख नहीं सकता। तो क्या हम शायर को गजल का शायर और नज़्म का शायर और रुबाई का शायर और फतेह का शायर? नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन गजल का शायर इसलिए कहते हैं कि गजल अरबाब फन की आजमाइश है। गजल के शायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं कि उसको वो हुनर आता है कि 2 मिसरों में एक बड़े मजमून को बांध देता है। तो आप जानते हैं रफीउद्दीन राज इन्होंने हजारों गजलें और आपके नज़में और क़तात वगैरह वो हैं, वो मैं उसमें हिसाब में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये गजल के शायर इस वजह से हैं, एक तो ये कि नज़्म में भी वही कमाल करते हैं, यानी इनके पास किफ़ायत अल्फाज है। गजल का शायर जो है लफ्ज़ियात के बारे में ज़्यादा तवज्जो करता है कि इस मज़मून को मैं 2 मिसरों में किस तरीके से, कौन से लफ्ज़ से इसको सजागर करूं। आप देख रहे हैं, देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं टोरंटो में बरबिसात गालिब पर, उसमें गालिब का मिसरा था हुजूर शाह में अहले सुखन की आजमाइश। इस पर अब आप देखिए तो मैं आपको बताता चलूं कि नई तहजीब की जद में है हर्फ व सौत की हुर्मत। 450 मिलियन लोग आज उर्दू जानते हैं, सोचते हैं, लेकिन उर्दू की वो कहबा नहीं। उसकी वजह क्या है? एक ही मिसरा राज ने कह दिया, नई तहजीब की जद में हर्फ व सौत की हुर्मत, सुखन की बज़्म में अब फिक्र फन की आजमाइश है कि कौन आ रहा है, कौन शायर है, कौन मुतशायर है, कौन किस तरीके से बात कर रहा है। तो मालूम यह हुआ कि लफ्ज़ियात सबसे अहम चीज होती है जो ओरिजिनल शायर होता है। और राज के पास आपको मिसरों से मैं साबित कर दूंगा कि लफ्ज़ियात ऐसे हैं। मीर अनीस के सामने मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर जाते हैं और उस्ताद ज़ौक़ का एक शेर पढ़ते हैं। मीर साहब सूरत देखने लगते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद समझते हैं मैंने गलत पढ़ दिया।
अब सोचकर उस्ताद ज़ौक़ का शेर सही पढ़ते हैं तो मीर अनीस ने एक जुमला कह दिया, कहा कि देखो मियाँ, जब किसी बड़े शायर का शेर पढ़ो तो सही पढ़ा करो, क्योंकि बड़ा शायर जब तक के तमाम अल्फाज के कुएं झांक नहीं लेता, लफ्ज को मुंतखब नहीं करता। देख रहे हैं आप? तो लफ्ज का इंतखाब, लफ्जिया और उसके बाद साख्तियात किस तरह से मिसरों में पिरोया गया, और साख्तियात के बाद आप देखेंगे कि उसमें जो जमालियात पेश करता है, उसमें जो उस शेर की नफ्सियात पेश करता है, तो ये जो सिलसिला चलता है एक शेर के फॉर्म में, यानी लफ्जियात से निकल कर साख्तियात से होते हुए जब आपके जमालियात के तरीके से पहुँच कर आपको नफ्सियात को इस तरह से झिझोड़ देता है कि वही असर जो शायर के सीने में था वो आप तक पड़ता है, वही अन्ना है। देख रहे हैं आप? गालिब का मिसरा इस्तेमाल किया राज ने, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर। ये गालिब भी गालिब है। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, मगर उठाया रफी ने। रफी राज कहते हैं, मेरा अगर है जिक्र तो गालिब पे हो, गालिब पे भी हो बात। मैं गालिब पे क्यों बात कर रहा हूं? आप ही ने कहा है मेरा अगर जिक्र हो तो गालिब पे भी हो बात, खतरे का जिक्र और समंदर कहे बगैर। तो हम जोड़ रहे हैं गालिब के साथ इस वजह से कि जब तक कि गालिब के मिसरे को नहीं समझेंगे आप, रफी की अजमत आपके जहन में नहीं आएगी। कारे पैगंबरी, फिर रफी कहते हैं, कारे पैगंबरी भी मैं करता हूं रोजो शब, लेकिन हुनूस खुद को पैगंबर कहे। इन दो शेरों में हमने किफायत अल्फाज पाए, इन दो शेरों में हमने तरसील का मैसेज पाया, इन दो शेरों में हमने ये देखा कि इतनी मुश्किल रदीफ है कहे बगैर, उसके बाद राज ने बहुत उम्दा तरीके से अपना पैगाम पहुंचाया। ये है बड़ी शायरी। तो मालूम यह हुआ राज खादिरुल कलाम शायर है, इस वजह से कि पूरे असनाफ में बात करता है। मालूम यह हुआ कि राज खादिरुल कलाम शायर है, इस वजह से कि उसको अल्फाज पर पूरी हुकूमत हासिल है। उसको देखिए, असल में होता यह है कि आम शायरी में कहा जाता है मौजू क्या है और उसे कैसा कहा गया। निकलसन कहता है अगर मौजू अजीम हो तो वो शायरी अजीम हो। तो मौजू कैसा है और उसे कहा जाए, ये आम शायर के लेवल पर होता है। लेकिन जब शायरी बड़ी होती है, मैं कभी किसी शायर को छोटा नहीं कहता, मैं सिर्फ कहता हूँ शायर बड़ा होगा, बाकी सब शायर होगा। मैं कहता तो मसला यह है कि मौजू इंसानियत है। पढ़ लीजिए आप ये 204, 205 गजलें जो कुछ भी इन्होंने की हैं, या मसला यह है कि मैं किताब का कीड़ा हूँ, आप जो चीज़ देते हैं पढ़ता हूँ, तो इनकी नज़में और इनके इस वक्त मैं ऐसे अथॉरिटी आपसे बात कर रहा हूँ और एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रफीउद्दीन राज की शायरी बड़ी शायरी इस वजह से, बड़ी शायरी दुनिया की जबानों में होती है, उर्दू भी उस लेवल पर है कि बड़ी शायरी पेश कर सके। क्योंकि यहां पर मिसाल के जरिए से बताऊंगा कि आप जानते हैं कि इंसानियत की बात हुई, मुकाम इंसान की बात हुई, अजमत इंसान की बात हुई है, हुकूक इंसान की बात हुई है, इंसान साजी की बात हुई। इकबाल ने कहा था आदमियत एहतराम आदमी। आज की दुनिया जो चांद पर पहुंच रही है और गड़बड़ कर रही है, उसके पास अगरचे के आप कमान डाल रहे हैं, लेकिन आप अपने अखलाक में और इंसान शनासी में आप पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। इकबाल ने कहा था आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अज मुकाम आदमी। तुम मुकाम आदमी को जानने की कोशिश करो, और यही आपके जो है क्या कहते हैं, जो निचोड़ है राज की शायरी का, इंसानियत का। आप देख रहे हैं
راز کہتے ہیں آدمیت کھو رہی ہے اپنا پیکر کا جمال. حضور نے فرمایا کہ میں مکارم الاخلاق بنا کر بھیجایا گیا. قرآن نے تصدیق کی انکا والجا کہ تمہارے اخلاق عظیم ہیں. جب مہاراجا کشن پرساد سے ایک نوجوان مسلمان نے پوچھا مہاراجا آپ نے یہ جو نعت سنائی ہے کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو مہاراجا نے کہا میاں تو خدا پرساد ہے میں کشن پرساد ہوں اور سن میں حضور کی نعت اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ حضور کے اخلاق کا جو انسان کے شانوں پر بار ہے اس کو آپ کے کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور ہمارے مکارم الاخلاق ہیں. اخلاق اصلی چیز ہے. کیا کہا راز نے آدمیت کھو رہی ہے اپنے پیکر کا جمال. ڈھول پیٹا جا رہا ہے عہد کی توقیر کا. کیا توقیر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد سے کہتے ہیں احترام آدمیت کا چلن اپنائیے. راز کا شعر احترامی. میرانش نے کہا تھا چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے. ہر ایک شخص کی ایک شخصیت ہے. وہ کتنا بھی ہو آپ گارڈین کا سوٹ پہنے ہوئے ہو ڈاکٹر کا بوٹ پہنے ہوئے ہیں آپ بہت بڑے آدمی ہو شہنشاہ لیکن ایک معمولی سا برہنہ بھی آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت کا خیال رکھیے اس کے مقام کا خیال رکھیے اس کی توقیر کا خیال رکھیے اس کے احترام کا خیال رکھیے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں احترام آدمیت کا چلن اپنائیے. شرط ہے اوروں کی عزت اپنی عزت کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت کریں تو یہ شعر میں پیش اس وجہ سے کر رہا ہوں یہ بتانے کی حاصل کر رہا ہوں کہ دیکھیے آدمیت انسان شعر کیا ہے وہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے. کیا غزل ہے غالب اس مصرے پر غزل پڑھیے. رفیع راز کہتے ہیں انسان کیا ہے حرمت انسانیت ہے کیا سچ شکر میری ذات کو یہ ہوش گوش ہے. یعنی جو شاعر جو شاعری جو انسان یہ سمجھ جائے کہ انسان کا مقام کیا ہے اس کو بہت بڑی چیز مل گئی ہے. انسان کیا ہے حرمت انسانیت ہے کیا سچ شکر میری ذات کو یہ ہوش گوش ہے. اور کیا ہے پھر ایک جگہ ایک اور ایک مصرع میں بالکل مختصر طریقے سے چل رہا ہوں ورنہ اس پر ہم اتنی بات کر سکتے ہیں. دیکھیے آج دنیا ادب کو ہم پیش کر سکتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا شاعر بھی ہے جو انسانیت کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ حسن یہ گل و گلگل کی باتیں یہ آپ کے رخسار اور آپ کی گیسو کی باتیں چلتے رہیں لیکن انسانیت کی بات ذات انسان میں نظر آتا ہے ہر حق سے حیا. ذات انسان میں نظر آتا ہے ہر عکس حیات. عکس حیات کی جتنی بھی تعریف کی جاتی ذات انسان میں نظر آتا ہے ہر عکس حیات. یہ جو انسان ہے یہ شیشہ نما ہوتا ہے. یہ جو انسان ہے شیشہ نما جو ہے یہ ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے بعد آپ اگرچہ کہ ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہمارا دل آپ کے آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم آپ جان سکتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں شاعر پیمبری تو ہے محمد اقبال نے کہا تھا کہ وارث پیمبری ہے اگر وہ اس طریقے سے جائے تو ایک سیکھے اہل محبت سے. سیکھیے اہل محبت سے محبت کا چلن. ابھی عثمان بھائی نے پوری چیزیں عرفانی اور تصوفی اور ان کا وہ تھا جو باتیں پیش ہوتی ہیں اس کو میں دہراتا نہیں. اسی وجہ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے مگر جو ہے بہت اسی طریقے سے کہا عرفانی ذریعے تو سیکھیے. راز کہتے ہیں سیکھیے اہل محبت سے محبت کا چلن. یہ مرض دل کے لیے وجہ شفا ہوتا کتنی بھی تعریف کی جائے شعر کی کام ہے. یہ اس وجہ سے ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جی انسان آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ بصارت ہے. اللہ بصارت سے آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا لیکن اللہ
दिल की आंख से बिल्कुल देखा जाता है, जिसको बसीरत कहते हैं। आप जानते हैं कि मौलाना रूम ने कहा था, क्या कहा था? चश्म बंद, गूश बंद, लब्बे बंद। तू अपनी आंखों को बंद कर ले, तू अपने कानों को बंद कर ले, तू अपने मुंह को सी ले। गर नबीनी राह हक बरमन बखान, अगर तू राह हक को, अल्लाह के रास्ते को नहीं देखेगा तो तू मुझ पर हंस। तो मालूम ये हुआ, मौलाना रूम ये कह रहे हैं आंख बंद करने से यानी मुराकबे में जाने से आपके अल्लाह को देखते हैं। और मौलाना रूम का जो आपके शागिर्द और जो तमसीली आपके मोहम्मद इकबाल जो इस मुर्शद और मुरीद है, वो मुरीद बिल्कुल दूसरी तरीके से कह रहा है। कोई कहता है ये गिलास में, कोई कहता है इसमें आपके जो है पानी भरा है, कोई कहता है नहीं इसमें आपके आधी बॉटल खुद आपके पानी नहीं है। दो तरीके से कहा जा सकता है। इकबाल ने क्या कहा? चश्मो गूशो लब कुशा ए होशमंद, आंख खोल, कान खोल और लब को खोल, होश में रहे। गर नबीनी राह हक व मन बखान, अगर तू अल्लाह को नहीं देख सका उस वक्त मुझे, तो मालूम ये हुआ आंखें बंद करने से, होंठ बंद, कान बंद करने से या खुला रखने से कुछ फर्क नहीं होता। और इसी में जबरदस्त शेर रफ़ी ने लिख दिया, वो लेते जाइए। रफ़ी कहते हैं, ऐ मेरी चश्मे बसारत अब मुझे, लेते जाइए कमाल का शेर। ऐ मेरी चश्मे बसारत अब मुझे, बंद आंखों का उजाला चाहिए। कहने का अंदाज देखिए, ये है बड़ी शायरी। हम क्यों कह रहे हैं रफ़ी बड़ा शायर है? इस वजह से कि इस्तग़राक़ है गुफ्तगू में, देखें। और आज का इंसान बसीरत, और एक और फिर एक और एक गजल में और एक शेर इसी मानी का है, वो भी लेते जाइए रफ़ी राज का। बसीरत के हामिल खुली आंख से भी, बसीरत के हामिल खुली आंख से भी खुदा को, खुदा की कसम देखते हैं। कितना सादा लफ्ज़ है। तो मालूम ये हुआ बड़ा शायर जब लफ्ज़ों से काम लेता है तो अल्फाज को इस तरीके से पुरो देता है कि उसमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चीज़ होती है अल्फाज को जो शायर रखता है, यानी सादगी, खुलासत, और उसको हिफ्ज़ मरातिब कहते हैं। यानी एक परिंदा जो दीवार पर बैठा है उसको एयरगन से भी आप मार के गिरा सकते हैं, उसको तोप से भी मार के गिरा सकते हैं, लेकिन अगर तोप से गिराया जाए तो दीवार भी मुनहदिम हो जाती है। तो जैसा आपके मज़मून हो वैसे ही अल्फाज का इंतखाब बड़े शायर की निशानी है। तो खुदा की, अब आप जो खुदा की कसम खा के कहते हैं कि बसीरत के हामिल खुली आंख से भी खुदा को खुदा की कसम देखते हैं, इतना बड़ा शेर है, इतना सलीस और सादा, इतने अजीम तरीके से कहा गया है। तो लेकिन इंसान कहाँ मानता? सिक्के के दोनों रुख बताए गए। कहते हैं अपने सिवा किसी की परस्तिश नहीं कबूल। आज का इंसान क्या करता है? माई वे इज द हाईवे। अगर आप मेरे साथ होंगे तो आप इंसान है, वरना जो है माई वे इज, अपने सिवा किसी की परस्तिश नहीं कबूल। हर आदमी का अपनी ही चौखट पर सर है। आज ये नाम हर आदमी का अपनी ही चौखट पे सर है, यानी मेरी चौखट पर दूसरों की चौखट पे नहीं कहूँगा। तो ये जो आपके है, देखिए इंसान, कुरान मजीद ने 3 ऐसे वादे अल्लाह ने हमको दिए हैं जो दूसरे, मैं इंटर फेथ स्टडीज करते रहता हूँ, 3 चीज़ें ऐसी कही गई हैं जो दूसरे मज़ाहिब ने नहीं किया। एक ये इंसान की, एक ये नायबुल्लाह फिल अर्ज़, इंसान कितना भी फिसाद करे, खुरेजी करे, बद रहे, फिर भी वो अल्लाह का नायब है जमीन पर। एक दूसरी चीज इंसान अशरफुल मखलूकात है, कोई चीज ना हो। इसी वजह से तो इकबाल गुफ्तगू करते हैं कि ये जिब्रील, ये आपके मलाइक, ये आपके जो है फरिश्ते, ये सब इंसान से नीचे हैं।
کہا اقبال نے، یہ جو ہماری دنیا ہے یہ ناسوت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہوا سے، اس کے اندر جو کھلتی ہے وہ ہے ملک، اس کے اندر جو کھلتی ہے وہ ہے جبروت۔ جبروت حضرت جبریل کی سرحد ہے، اس سے آگے بڑھ جائیں تو آپ تصوف اور عرفانی زاویے دیکھیے کہ حضرت جبریل کے پر جل جائیں اور اس کے اندر کھلتی ہے لاہوت۔ اقبال نے نہیں کہا اے طائر لاہوتی، اقبال نے نہیں کہا اے طائر ناسوتی، نہیں کہا اے طائر جبروتی، نہیں کہا اے طائر ملکوتی، بلکہ کیا کہا انسان کو؟ اے طائر لاہوتی، جہاں پر جبریل کے پیر لگ جائے وہاں سے انسان کی پرواز شروع ہو، وہ ہے مقام انسان۔ تو اس انسان کی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غالب کو انتخاب کیا۔ میں نے آج سے 20 سال 15 18 سال پہلے ایک مضمون لکھا، اردو کا سب سے پہلا ترقی پسند شاعر اسد اللہ خان غالب۔ آپ پڑھیے، غالب کی 15 فارسی میں مثنویاں ہیں، ایک مثنوی ہے رنگبو، جا کر دیکھ لیجیے، رنگبو میں دیکھیے اقبال غالب کیا کہہ رہا ہے، عزم کے بارے میں بات کر رہا ہے، استقلال کے بارے میں بات کر رہا ہے، انسان روی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ مسلسل کوشش اور عزم کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور کوئی انسان کچھ نہیں ہے قرآن مجید کے اس میں وہی پاتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو صحیح کرتا ہے۔ راز نے اس طرف انسانیت کا رخ موڑا، ہر آدمی کے جام میں ہے تلخی حیات، کیا ہر آدمی کے، کسی کے ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دو پہر دیکھا، ہر آدمی کے جام میں ہے تلخی حیات، اس میکدے میں جو بھی ہے وہ محو نوش ہے، منزل کی جستجو ہے مگر زاد راہ میں، عزم و یقین جنون و جوش و خود، عزم و یقین جنون نہ جوش و خروش ہے، ہم کہاں سے پائیں گے؟ نہ ہمارے پاس عزم ہے، نہ ہمارے پاس یقین ہے، نہ ہمارے پاس وہ جوش و خروش ہے۔ یہ سچائی ہے۔ یہ تلخ گفتگو میں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ بتاؤں کہ ہمارے اس شاعر نے اسی وجہ سے اس نے کہا ہے۔ تو ابھی دربھنگا میں پیدا ہوئے، کلکتہ کی طرف سفر کیا، مشرقی پاکستان میں زندگی کی، ہر روز زندگی سے دست و پا پوری طریقے سے، جس کو مشکل کہتے ہیں، جس کو عزم کہتے ہیں، زندگی جھیلی، پھر آئے کراچی میں، کراچی یونیورسٹی سے ہسٹری میں ایم اے کیا، 1963-64 سے شاعری شروع کی، لیکن کہاں شعرا سنتے ہیں۔ یہ جو پہلی کتاب آئی کہ خوش دیدہ خوش خواب، لوگوں کے پاس سرگوشیاں ہونے لگیں، ایک شاعر ہے جو مشرقی پاکستان سے آیا ہے، کیونکہ ایک شاعر جو ریئل شاعر ہوتا ہے، متشاعر نہیں، دوسرے شاعر کو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لیتا ہے، یہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے، لیکن 10 سال تک کسی قسم کا رفیع پر وہ نہیں ہوا۔ جب دوسری کتاب بینائی آئی تو لوگوں کو بینائی ملی، اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ شخص، اس کو کمال ہے بات برتنے کا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں بات برتنا؟ بات برتنا ہوتا کیا؟ بات برتنا وہی چیز ہوتی ہے جو فکری شاعر کو حاصل ہوتی ہے، کس طریقے سے لفظوں کو مصروں میں رکھا جائے۔ مثال دے رہا ہوں، دیکھیے یہ جو راستہ گزارا انہوں نے، عمر بھر بار گراں کے ساتھ چلنا ہے مجھے، عزم دیکھیے، عمر بھر بار گراں کے ساتھ چلنا ہے مجھے، کوہ غم کی خاص نسبت ہے میرے شانوں کے ساتھ۔ یہ درد، یہ مسئلہ، یہ لے کر جو چلے ہیں، اب اس کے بعد آتے ہیں آپ کے، میں یہ چاہتا ہوں، وقت کا مجھے پورا خیال ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے ایک غزل ہے
हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गालिब का मशहूर शेर, इस पर अब 4 मिनट में जामिन भाई मैं इस गजल की तशरीह करूंगा, और हर गजल की इस तरह से मैं तशरीह कर सकता हूं। सुनिए क्यों मैं ये बताना चाहता हूं। ये नहीं कि दिल्ली ये शायर मुनफरिद शेर कहता है बड़ा शायर फलां, नहीं, पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर सुपर। तो सही तरीके से उनको बताइए कि रफ़ी क्यों बड़ा शायर, रफ़अत क्यों है इसने क्या राजदारी की बातें कही, क्या हम ये लेवल हर एक के साथ लगा सकते हैं। शेर सुनिए, हमारी जात में रक्सा ये आरजू क्या है। गालिब के पास सबसे बड़ा कमाल शायरी में यह है कि गालिब के वो मिसरे बहुत आम हुए हैं जिसमें सवालिया इस्तेफामिया आपकी कशिश है, सवालिया मुंह क्या है, कैसा है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तो अब एक शेर कहा, हमारी जात में रक्सा ये आरजू क्या है, हयात क्या है, ये जीने की जुस्तजू क्या है। जवाब क्यों नहीं मिलता है इन सवालों का, ये बज़्म क्या है, मेरी जात क्या है, तू क्या। मुरद्दफ गजल, अल्फाज की सादगी, लेकिन अल्फाज ऐसे हैं मखसूसन ये जो मिसरा है इस पे पूरी किताब जो है कोई लिख सकता है। जवाब क्यों नहीं मिलता है इन सवालों का, हम एक मिसरा लेकर फारसी का 500 साल से चीख रहे हैं, मालूम शुद्ध के हीच मालूम ना शुद्ध, हमको इतना मालूम हुआ कि कुछ मालूम नहीं हो सकता। हमारा शायर ने बहुत ही आराम से कह दिया, जवाब क्यों नहीं मिलता है इन सवालों का। मिसरे में जब सवाल और जवाब आता है तो इसको सनद तज़ाद कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की तरकीब में, तशबीह में किसी चीज नहीं है। ये बज़्म क्या है, व्हाट इज दिस कायनात, मेरी जात क्या है, तू क्या है। हमारे पास 3 चीजें हैं, अल्लाह, कायनात, बंदा, खल्क़, मखलूक। इस मिसरे सानी में तीनों वही सवाल, ये बज़्म क्या है, ये कायनात क्या है, मेरी जात क्या है, ये इंसान क्या है, तू क्या है, हमारी तू। जवाब कुछ नहीं मिलता है इन सवालों। लहू बहाती हुई चश्मे शौक से पूछो, रसूल देख रहे हैं आप जमीन अरबाब सुखन, अरबाब को जो है आपकी जितनी भी इस गजल की तारीफ की जाए जिस मूड में लिखी गई है, इरफानियत है, तसव्वुफ है, इसमें मसाइल फलसफा जिसको कह सकते हैं पूरा है। लहू बहाती हुई चश्मे शौक से पूछो, चश्मे शौक, हमारे पास तकरीबन 40 से ज्यादा अल्फाज इश्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो मोहब्बत हो, इश्क हो, शौक हो, जुनून हो, विश्क हो, पर लंबी नमाज इश्क है क्या, नशे वजू क्या। इस्तिलाहात देखिए, पैकरी इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल हो रहे हैं, किसके साथ, खराबाती इस्तिलाहात के साथ। अभी तक आपने नशे वजू सुना, बेहतरीन आपके जो है तरकीब। नमाज इश्क क्या होती है, काबे की तरफ तो नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन जब काबा मस होता है हर सजदे में पेशानी के साथ, तो ये नमाज इश्क, काबा हट के आ जाता है और आपकी पेशानी से लग जाता है। लहू बहाती हुई चश्मे इश्क से पूछो, ये इरफानी शेर जिसने मुराक़बत की है, जो फनाफिल रसूल है, जो फनाफिल ला है, जो पूरे अपने वजूद में फना हो चुका है, उससे पूछो, उसकी आंख से पूछो, नमाज इश्क है क्या, वो हुसैन की नमाज। नशे वजू क्या है, ये कोई बज़्म है, आईना है, या रूए सराब, क्या मिसरे बोले। 21वीं सदी की गजल पढ़ रहा हूं, है
कोई ऐसी शायरी करने वाला न सिर्फ आपके जो है क्या कहते हैं 6 शेर की गजल पढ़ते हैं, डायरी निकाली अपनी जेब से और 4 लोगों को सामने बिठाया और एक मोबाइल पर आपके उस पर बैठकर आपके क्या कहते हैं सोफे पर बैठ के पढ़ते हैं और वो 6 सामने बैठे हुए कुर्सियों पर वो आपके जो है नशे में आपके गिर जाते हैं, 2-4 गिर भी जाते हैं, एक आदमी आपकी जो उसकी फोटो लेकर फेसबुक पे डाल देता है। और ऐसे शेर जिससे इंसान जागे, जिससे विजदान जागे, जिससे आपके जो है उसको कोई अहमियत नहीं मिलती, ये अदनिया तकी आदमी को केयर नहीं है। आई टॉक वेरी, क्योंकि मुझे बात कहना है, माने ना माने, ये कोई बासुम है, आईना है या रुए सरा, मैं किसके सामने हूं, मेरे रूबरू क्या है, ला मौजूद इल्लल्लाह। क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा इस तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ, हर एक पैकर एक कुल में है जुज़ियात का दखल। लेते जाइए ये मिसाल, वी आर मेड अप ऑफ, हमारे वो शख्स के शेर को तो आपने दुनिया में चढ़ा दिया, लेकिन ऐसे शेर हर एक पैकर एक कुल में है जुज़ियात का दखल। कुल जुज़ियात सनत तज़ाद, हुजूम में खतरा नहीं है तो आपजू क्या है, ये आपजू क्या है, ये नहर जो बह रही है क्या है। पढ़ोगे बावजू आंखों से कब तलक का, पढ़ोगे बावजू आंखों से तब खुलेगा राज, कलाम मीर में तब क्या है, ये कबू क्या है, जरा ये पूरी गजल के मैंने 5-6 शेर आपकी खिदमत में पेश किए, ये बताने के लिए कि देखिए इस मुरद्दफ लफ्ज़ में जो इस्तिफ़ामिया लहजा है, जिसमें वो क़ुव्वत है। देखिए एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं आपके क्या कहते हैं उसे मुसलसिल पढ़ रहा था कि जिसमें वो ये बताते हैं, होता यह है कि हाँ शायरी जिसमें आपकी खुद यानी यूँ समझिए कि फिक्री और बदनी जो इस्तिताअत है वो ज़्यादा हो जाए तो वो शायरी पैगंबरी होती है। वजूद रीज़ा 2-4 शेर सुनाकर ऐसा है सिकंदर भाई, गुफ्तगू तो इतनी ज़्यादा है कि मैं आप देख रहे हैं कि बहुत कम तरीके से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जानने की कोशिश करें कि हम इंसान जो है तो ये देखता है मेरा इसमें फ़ायदा क्या है, जब तक कि मेरा फ़ायदा नहीं है वो काम नहीं करता। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो अज़्म इस्तिक़लाल है, ये जो हमारे पास जो कसम कुर्सी है, कहते हैं अभी मौजूद हैं कुछ लोग जो अय्याम गम में भी ज़बां पर जिक्र लाते हैं बड़ी मुश्किल से मुश्किल तकरार लफ्ज़ देखिए, ज़बां पर जिक्र लाते हैं बड़ी मुश्किल से मुश्किल का, रगों में करवटें लेती है जिंदगी अब भी, ख्याल आता है जब अपने अज़्म जिंदा का। ये शेर लेते जाइए, बहुत ही अबू नवाज अरबी का बहुत जबरदस्त शेर। ये जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत सी चीजें जो है रफी साहब के लिए भी नहीं, इसकी वजह है वो तो शेर के खालिक, तकलीफ उनकी है। अबू नवाज गुजर रहा है बगदाद से, अरबी का शायर, तो उसने सुना उसके एक शेर को मौलिम पढ़ रहा है, उसका तर्जुमा ये था कि साखी शराब दे और ये कहकर मुझे शराब दे कि ये शराब है। तो मौलिम शागिर्दों से पूछ रहा है क्यों अबू नवाज कह रहा है कि शराब दे और ये कह के दे शराब है। अब वो आपके जो है स्टूडेंट अबू नवाज ने जैसे ही देखा कि उसके शेर की आपके तौज़ीह हो रही है, छुप कर सुनने लगा। तो अब वो हर एक स्टूडेंट ने कुछ कुछ कहा उस ज़माने में, जो कहा नहीं देखो जब सागर मैं नाक के सामने आएगा तो उसकी क़ुव्वत शामा जो है आपके जो है दर्द कर लेगी ये शराब। जब उसको चश्मे से देखेगा तो वो जो मौज शराब की है उसे देखेगा तो उसे सुरूर आएगा। जब वो आपके क्या कहते हैं थोड़ा सा एक खतरा उसका ज़बान पर डालेगा तो मज़े से उसका सुरूर और उसका नशा ज़्यादा हो जाएगा। तो भूखे हाथ में जब देगा तो उसको एहसास होगा। एक सिर्फ आपके क्या कहते हैं हवास
नहीं था। जब लफ्ज शराब सुनेगा तो वो भी उसका क्या कहते हैं, उसको और नशा दोभर करेगा। जैसे ही ये तर्जी सुना, अबू नवाज भागकर उसने मौलिम को लपटा लिया। ये है मौलिम से कहा, बखुदा शेर कहते हुए मैं समझा नहीं था कि मैं ये कह रहा हूँ। सुना मैं, मुझे ख्याल नहीं था कि मैं ये जो कह रहा हूँ इसका मानी ये। तो मालूम ये हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं राज नहीं जानते कि ये राजधानी क्या है। बोलना पड़ता है। एक शेर है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि इतनी गजल। तो कहते हैं, वजूदे रीजा रीजा में गुजारी उम्र तब जाकर। आज मसनद सदारत पर है राज रफीउद्दीन आज, मगर आसानी से नहीं आए इस इंसान। वजूदे रीजा रीजा में गुजारी उम्र तब जाकर मताए जां को नजरे खाक करने का हुनर आया। तो मताए जां क्या है? ये है सनत इल्हाम, ये है सनत इल्हाम। ये शेर को आप 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो मौत की जिक्र कर रही है कि मताए जान, हम लोग जो है ये जिंदगी 50, 60, 70 साल की गुजार कर अपनी जान को, जो हमारी दौलत है, खाक को सुपुर्द करते हैं। ये तो हुआ आमिया और मामूली सा मतलब, लेकिन असल मतलब जो शायर कह रहा है वो उसका फन है। क्या कह रहा है कि इस मुश्किल संगलाख रास्तों से गुजर गुजर कर, रातों को तमाम बेदारी से गुजार कर, शबान और रोज पन्नों आपके जो है खून खुश कर कर मैंने जो ये शायरी की है, ये शायरी ही मेरी मताए जान है, दौलत जान है, जो मैं नजर खाक कर रहा हूँ। नजर खाक यानी हम सब खाक के बने हुए हैं, हम सब खुदे खाक हैं, यानी इंसानों को पेश कर रहा हूँ। तो मालूम ये हुआ कि ये शायरी है जो राज को 7 साल नहीं हजारों साल जिंदा रखेगी। ज़ौक़ ने कहा था, औलाद से रहे यही, क्या कहा था? रहता सुखन से नाम, क़यामत तलक है ज़ौक़। ये छुप नहीं सकता है शायर, शेर के छुपने के बाद शायर, यानी इस वक्त रफ़ी छप चुके हैं, रफ़ी इस वक्त आपके कागज पर आ चुके हैं, तो छुप नहीं सकता है शायर शेर के छपने के बाद। और बखौल ज़ौक़ के रहता सुखन से नाम, क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रही यही, 2 पुश 4 पुश, 2 पुश 4 पुश की बात नहीं है, आप हमेशा जिंदा रहेंगे। तो मताए जान को नजर खाक करने का हुनर आया। तो ये तख्लीकी मसला जो है ना आपके जो है, यानी वो तो एक मामूली शेर था, वो 19वीं सदी का शेर था कि रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद, उसमें इल्हाम नहीं था, उसमें इहाम नहीं था, लेकिन मताए जान को नजर खाक करने का हुनर आया। ये पूरे आपके जो है सनतों से गुफ्तगू हो रही है, ये बताती है। तो जो हमारे पास गजल है, खत्म कर रहा हूं, जो हमारे पास गजल है वो जो खदीम गजल है, उसके बाद क्लासिक गजल आई, उसके बाद से आपके यही क्लासिक गजल जब आई तो आप जानते हैं कि इस पर अलीगढ़ तहरीक का असर हुआ, नाम नहीं दिया गया। और उसके बाद तरक्की पसंद गजल आई, और तरक्की पसंद गजल के बाद 1960s में आप जानते हैं कि जदीदियत हुआ, हमने उसको कहा जदीदियत की गजल। उसके 10 साल न गुजरे थे कि 1970 और 75 में हमने कहा माबाद जदीद गजल, और इस गजल को हम असली गजल का नाम दे रहे हैं। और इसी असली गजल, यही ग्लोबल विलेज की गजल, यही आज के इस दौर की गजल का उम्दा तरीन शायर है हमारा रफी राज। और उनकी आवाज में ये कहता है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं ये बस, इनकी शख्सियत मनमोहनी है, इनके साथ है इज्जत है, ईमानदारी है, दरवेश सिफत है। और आप जानते हैं तो, और जिंदगी के हौसलों को, जिंदगी को हौसले से झेला है और कभी शिकायत नहीं की। एक शेर कह दिया, काश के हम भी इस तरह से हो जाएं। आसाइश हयात की फुर्सत ही कब मिली, आसाइश हयात की फुर्सत ही कब मिली, एक एक सांस कर्ज की सूरत अदा हुई। एक एक सांस। और फिर आगे कहते हैं इसी रास्ते से कामरानी और कामयाबी इस वजह से मिली कि
तैयार कर लिया था अपने आप को। राज का दूसरा शेर इसी पर है कि अपनी हर सांस को आगाज सफर से पहले। देखिए गजल लिखी, गजल अरबाब फन की आजमाइश है। हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी। जो सुनता है उसी को अपनी दास्तां मालूम हो। ये सब गजल के मसाइल है। अपनी हर सांस को आगाज सफर से पहले सख्ती वक्त की देती थी बशारत मैंने, यानी यू वर प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स, आपके पूरी तरीके से। तो जो मावेरा था मेरे अहद की समाज से, तो फिर राज जो सुन रहे थे हमने क्यों नहीं सुना? राज जब शायरी कर रहे थे तो हमने क्यों आपके जो है उनकी शायरी को वो नहीं कहा? ना मंजर निगारी पे बात की, मैंने ना वाकया निगारी पे बात की, मैं ना मुरक्का निगारी पे बात की, मैं ना जज्बात निगारी पे बात की, मैं ना नफ्सियात निगारी पे बात की। इन सब का मैं आपका जो है किसी मजमून में इन चीज़ों पर जिक्र कर दूंगा। आपके जो है सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि बड़ी शायरी है, सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि इसमें सनाए लफ्जी क्या है, सनाए मानवी क्या है। इसमें इतने साफ है। अल्लामा शिबली कहते हैं कि रोजमर्रा यानी क्या है, वो मिसरा आली तरीन मिसरा होता है जिसकी नस्र ना की जाए, यानी इस तरह से कहा जाए कि बिल्कुल नस्र की शक्ल में हो, उसको रोजमर्रा कहते हैं। तो वो तशबीह हो या इस्तियारा हो या इशारा हो या अलामात हो या वो पैकर साजी हो या वो आपके ये तमाम चीज़ों का जौहर आपको उनकी शायरी में मिलेगा। रह गया ये कि फिर इसके बाद न चेहरा रहा न खालो खत, जब आईने के लिए आईना बनाया गया। यही शर्त। देखिए देखिए ये 4 मिसरों पे मैं 25 मरतबा कह चुका हूँ, खत्म कर रहा हूँ, खत्म नहीं करता। मगर यकीनन आप जो है, आप यकीन मानिए खत्म कर रहा हूँ। ये 4 तो झूठ कहता है, तो उसमें आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं। ये 4 मिसरे लेते जाइए। सवाल मैंने ये उठाया था कि इनको जो ये मिला, ये जो फितरत में, ये जो आपके इल्हामी तौर पर बदियत हुई, ये बड़ी शायरी हमें क्यों नहीं? इसका जवाब 4 मिसरों में, वो 4 मिसरे पेश कर रहा है और हर बड़े शायर को हर सीखे। देखिए मुशायरे में आप शायर को सुनते हैं, शेर को समझ नहीं सकते। शेर को समझने के लिए आपको खलवत में मुताला करना पड़ता है, लफ्ज़ों में डूबना पड़ता है, उसके पूरे एहसास में पूरी तरीके से शामिल होना पड़ता है। उस वक्त जाकर आपके जो हवास होते हैं, उस वक्त आप जानना चाहते हैं कि शायर क्या कह रहा है। रफ़ी को पढ़ा जाए, रफ़ी छप चुके हैं, 28 से ज़्यादा मजमूए आपके पास हैं, तो कुछ वक्त निकालिए ताकि अपनी बेहतरी के लिए, अपनी विजदानी उसके लिए, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए, अपने मनाजिर को तय करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि बड़े शायरी का मुताला किया जाए। इस वजह से कि बड़े शायरों की मुतालिकी में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं तो एक कॉन्वेंट का स्टूडेंट हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ आपके बात कर रहा हूँ। ये तो सब मीर अनीस का असर है जो मुझे दिया गया है। मीर अनीस को मैंने इतना पढ़ा कि जिसकी वजह से आपके सामने बात करने का मुझे शरफ मिलता है। तो इन शायरों को पढ़ें। क्या कहा राज ने कहा, जो मावरा था मेरे अहद की समाज से, जो चीज़ छुपी हुई थी हमारे माहौल से, हमारे दौर से, मावरा जिसको देखा नहीं जा सकता, वो शोरे वक्त मेरी आंख को दिखाया गया। वो वक्त का जो शोर था जो हम नहीं सुन रहे थे, इनके कान को नहीं, आंख को दिखाया। फिर इसके बाद तो फिर क्या हुआ? यही है अल्लाह की देन। फिर इसके बाद न चेहरा रहा न खालो खत, जब आईने के लिए आईना बनाया गया। तो आईने सामने रख दीजिए तो लाखों दरवाजे खुल जाएंगे, आपको जो है कोई इंतहा नहीं रहेगी। अब जो ख्यालात आएंगे, अब जो गुफ्तगू होगी, अब जो इसके सामने से वगैरह होगा, तो ये पूरी तरीके से आपके क्या कहते हैं। तो हुआ ये कि आर्ट और साइंस का जो फर्क है, 2 और 2 4 होते हैं। आर्ट का जो है, जो साइंस है, साइंस का एक मैथमेटिक पोर्शन है,
वो उर्दू में हो, हिंदी में हो, वो नॉर्थ में हो, वो साउथ में हो, वो इस जबान में हो, 2 और 2 हर जगह 4 होंगे। लेकिन मैं जो कहा हूँ उससे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पूरी तरीके से नहीं करें। इस वजह से कि मैं फ़नून पर बात की, जब फ़न पर बात की जाती है, जो हमारे पास फ़नून लतीफ़ा हैं, वो मेमारी हो कि मुसव्वरी हो कि वो नक्काशी हो कि वो शायरी हो कि वो रक़्स हो, इसमें गुंजाइश है। जब मैं कहता हूँ कि लाल रंग सफ़ेद रंग में मिलाएं तो ये रंग बनता है, आप कहते हैं नहीं होता, कह सकते हैं यू आर राइट। क्यों? जब 2 और 2 तो 4 होंगे, जो कहेगा कि 2 और 2 4 नहीं होते उसको गलत माना जाएगा। लेकिन जब मैं कहूँगा कि लाल रंग में जब सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो ये रंग हासिल होता है, तो आप कहेंगे नहीं, इस वजह से कि ये फ़नून है, ये फ़नून लतीफ़ा है। जितना जितना लाल परसेंटेज बढ़ता जाए तो रंग बदलता जाएगा, रोशनी में पेश किया जाए तो उसका अलग रंग रहेगा, उसको बॉर्डर और पीछे आपके जो है शेड में पेश किया जाए तो कुछ रंग होगा। तो उसमें है फ़नून लतीफ़ा पर, शायरी पर, जो तन्हा फ़नून लतीफ़ा है जिसमें आपके कोई मटेरियल यूज़ नहीं होता, गुंजाइश है। मैं सलाम करता हूँ आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे, सतो संसार, और इंशाल्लाह इसी तरीके से अपने कामयाब तरीके सफ़र पर जारी रखें। जब हम ये कहते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमें यहाँ मुयस्सर है, तो इसमें कोई बात नहीं है। अभी नबी साहब की बात सुन के कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ गई, हालांकि टाइम बहुत कम है, लेकिन शायद मुझे बाद में बोलने का मौका न मिले, इसलिए बोल ही देता हूँ। तो राज साहब की शायरी पर गुफ्तगू करना मेरा मुकाम नहीं है। अभी आपने सुन ली बातें शायरी की, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये गुमान है कि चचा गालिब अपने अच्छे कामों की वजह से इंशाअल्लाह जन्नत में होंगे इस वक्त, और शरी की शराब तबूरा से महफूज हो रहे होंगे। लेकिन कभी कभी जब उनको बताया जाता होगा कि ज़मीन पे कुछ लोग ऐसे अशार कह रहे हैं तो वो चौंक के उड़ जाते होंगे। हाली और गालिब और राज और बीच में और बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके आराम में खलल जरूर डाला होगा, और उन्होंने जरूर सोचा होगा कि अच्छा मेरे बाद भी कुछ लोग थे, सिर्फ नींद ही नहीं था मेरे से पहले। तो खैर, एक हमारी अरबाब तालीम प्रोग्रामों की एक रवायत है कि हम सवालात पूछते हैं। आज चूँकि टाइम नहीं है इसलिए सवाल ज़्यादा नहीं पूछेंगे और ना हम फ्लोर से सवाल लेंगे, लेकिन एक दो सवाल मैं राज साहब से करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो किताब आपने लिखी है इसमें गालिब के ज़मीन में जो गज़लें हैं, तो क्या किसी की ज़मीन में गज़ल कहने से फायदा होता है, और होता है तो क्या होता है, किसको होता है? आज महफिल को देख के शांति भी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, और मुझे अपनी तहजीब में नाज है। अदबी प्रोग्राम और अदबी प्रोग्राम में इस तरह लोग बैठे हुए हैं, आप नहीं हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। उस गुफ्तगू में मैं देखा था हमारे दोस्त हो के एक एक शख्स सुन रहा था। ये मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, सच्ची बात, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा तरह की बात की, तरह पे गलत कहना मेरी नज़र में अच्छी बात नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है। होता ये है कि तरह अगर आप एक किसी असाधा को उठा लीजिए अपने किसी शायर का, तो चलिए उसमें इतनी बात नहीं होती, आप गलत कहने कोई आपका मौका देने को कोई दूसरा नहीं है।
लेकिन जब मिश्रा दिया जाता है तरह का तो मखसूस तबाही मखसूस होते हैं 10, 12, 15, 20, 30, 35, 40 स्टोर पे आ रहे हैं। हाँ शायद उन्हीं कवाफियों के अंदर नूरानी लिखना होगा, उससे आपके अंदर एक मुकाबले की सूरत पैदा होती है और आप सोचते हैं कि लफ्ज़ को किस तरह अगर ये बरसात है तो ये काफिया तो अपने साथ एक मजमून लेके आता है, ये बिजली है तो मालूम आंधी तूफान के साथ है, सैलाब है, ये वगैरह वगैरह जो कुछ है तो नई कोई बात होनी चाहिए। जिस तरह आप सोचते हैं तो आपको नई नई राहें मिलती हैं अपने तो हमेशा तरीन मुशायरे होनी चाहिए और तरह से सीखने का, खासतौर पर नए लोग हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। अब तो रिवाजी शब्द हो गया, गौर करें पहले आज से तो तरीन मुशायरे हुआ करते थे, तमाम असाज़ा की लफ्ज़ें पड़ी हुई हैं, उनके अंदर मुकाबला हुआ करता तो कोई भी वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उससे गुरेज नहीं कर भागा नहीं कर, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल बस आखिरी और मैं करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो गजल के मुनकिर हैं या उसको अच्छा ही नहीं समझते। आपकी नज़र में गजल क्या अब तक उर्दू की अहम तरीन सिल्क है? बिल्कुल मेरी नज़र में है, जो ये जगह पुराना है होती है ऐसा कि कलीमुद्दीन ने कह दिया कि से सफर है तो अब्दुर्रहमान बिलवी ने इससे आप देखिए क्या आसमानी सही बात इंडिया तो ये होता रहता है। तो बदल को बदल जो है नज़र की दुश्मन तो नहीं है, होता है नज़र की दुश्मन समझना कतई गलत बात है। अपने बदल आगे नज़र भी आगे बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं, अच्छे नज़र कहने वाले हो रहे हैं, लेकिन जो बात नज़र में है आप उठा के देख लें कि नज़र में अगर नज़र में 100 साल 200 साल से कहीं जाती है, लेकिन कितने नज़र के हैं जो आवाम में गर्दिश कर रहे हैं। बदलों में आप देखिए तो ये आसानी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। बगैर इसके लिए सोचना कि सब जो हमारे राह का रुकावट है इसे हटा दो जब फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको आगे बढ़ने के लिए उसी माहौल में आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर नज़र के लोग ये समझते हैं कि गज़ल उनकी राह रुकावट है, ऐसी बात नहीं, वो कोई करके आगे बढ़े। गज़ल तो बिल्कुल नहीं कहते किसी के इसे बंद कर दें, ये अपनी मकबूलियत के अलावा गज़ल ये कहे क्योंकि हम बहुत मकबूल है उर्दू में, लिहाजा दूसरे इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं कहा जाता है। तो फिर दूसरे इस्लाम वाले क्यों समझते हैं कि गज़ल को खत्म कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ रफ़ीउद्दीन राज साहब को जो तशरीफ़ लाएँ और जो भी उनसे कहना चाहते हैं कहें और जो कलाम अगर सुनाना चाहते हैं सुनें। हालांकि शेरी मजलिस में भी हम उनका कलाम सुनेंगे। सबसे पहली बात है कि टोरंटो की मोहब्बत का तो मैं जिंदगी भर मकरूज रहूंगा, बेइंतहा मुझे यहाँ मोहब्बत मिली। मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में भी कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा मेरे चाहने वाले यहाँ, अच्छी बात है। इस्लाम की बात को सुना दूंगा। इंसानी अजमत पे बात की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब तो आपके सामने ही जो नाम है कोई दूसरा नाम ढूंढने से भी नहीं अपनी जगह पे। इंसानी अजमत के हवाले से फिर देखिए कि हमी पे खत्म हुई अजमत हुनरमंदी, हमी पे खत्म हुई अजमत हुनरमंदी, हमारे बाप ने मिट्टी से कुछ बनाया गया। हमी पे खत्म हुई अजमत हुनरमंदी, हमारे बाप ने मिट्टी से कुछ बनाया गया। अब क्योंकि बरबखा के गालिब के हवाले से है तो मैं पहले गालिब से शुरू करता हूँ। एक दो शेर दो शेर गजल से पहले सुन लीजिए, फिर बस सुनाता हूँ। हम हैं फानी ये कहानी और है। आपने जो पढ़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन देखिएगा, हम हैं फानी ये कहानी और है, आदमी की राय जानी और है। आदमी को राय ना नहीं होना चाहिए, फाना तो होनी होना है। हम हैं फानी ये कहानी और है,
आदमी की राय जानी और है। शेर देखिएगा, इस तरह का शेर है कि सामने औलाद है दुनिया नहीं, सामने औलाद है दुनिया नहीं, आज मेरी बेजबानी और है। चलिए गालिब की पहले हम देख लीजिए। बानी के अखबार है दुनिया में है आगे पे देखिएगा कि सहरा को सिमट कर हुआ जर्रा मेरे आगे, सहरा को सिमट कर हुआ जर्रा मेरे आगे, अब जो सके लाख को ले आ मेरे आगे। सहरा को सिमट कर हुआ जर्रा मेरे आगे, अब जो सके लाख को ले आ मेरे आगे। या छोड़ दे रास्ता मेरा गर्दी से दौड़ा, या छोड़ दे रास्ता मेरा गर्दी से दौड़ा, या तक के बराबर कोई गम ना मेरे आगे। या छोड़ दे रास्ता मेरा गर्दी से दौड़ा, या तक के बराबर कोई गम ना मेरे आगे, या तक के बराबर कोई गम ना मेरे आगे। मैं जब भी उठाता हूँ कदम जानिबे मंदिर, मैं जब भी उठाता हूँ कदम जानिबे मंदिर, चलता है मेरा नक्शे कपे पार मेरे आगे, चलता है मेरा नक्शे कपे पार मेरे आगे। एक संगे अना है जो हटाए नहीं लगता, एक संगे अना है, एक संगे अना है जो हटाए नहीं लगता, सहरा है न पर्दा है न गलियां मेरे आगे। एक संगे अना है जो हटाए नहीं हटता, सहरा है न पर्दा है न गलियां मेरे आगे, सहरा है न पर्दा है न गलियां मेरे आगे। फिर देखिएगा सर डॉक्टर सरगोशियां करती हुई दुनिया मेरे पीछे, सरगोशियां करती हुई दुनिया मेरे पीछे, आईना दिखाता हुआ नभा मेरे आगे। सरगोशियां करती हुई दुनिया मेरे पीछे, आईना दिखाता हुआ नभा मेरे आगे, आईना दिखाता हुआ लम्हा मेरे आगे। मैं हूँ मेरा हमदर्द है कि हमदाम है मेरा, मैं हूँ मेरा हमदर्द है कि हमदाम है मेरा, ये कौन है जो टूट के बिखरा मेरे आगे, ये कौन है जो टूट के बिखरा मेरे आगे। रात मेरी आईना खाने में मुकैयद, रात मेरी आईना खाने में मुकैयद, उम्र रहा मेरा सराफा मेरे आगे। रात मेरी आईना खाने में मुकैयद, ताउम्र रहा मेरा सराफा मेरे आगे, ताउम्र रहा मेरा सराफा मेरे आगे। सर मतलब फिर देखिएगा कि बस इतना बता दे तू मेरे ज़ौक़े नज़र को, बस इतना बता दे तू मेरे ज़ौक़े नज़र को, पर्दे में है तू या कि है पर्दा मेरे आगे। बस इतना बता दे तू मेरे ज़ौक़े नज़र को, बस इतना बता दे तू मेरे ज़ौक़े नज़र को, पर्दे में है तू या कि है पर्दा मेरे आगे, पर्दे में है तू या कि है पर्दा मेरे आगे। और ढलते हुए सूरज की खबर है मुझे एराज, ढलते हुए सूरज की खबर है मुझे एराज, अब चलने लगा है मेरा साया मेरे आगे। ये अगर आपको प्रोग्राम नहीं बसना है तो बस कि आप जो
غالب کی غزل میں صرف ایک ہی شعر ہے، لیکن میں نے پوری غزل کیا ایک کاغذ پر ہی کہ آپ کیوں نہ تسلسل سے روانی مانگے، آپ کیوں نہ تسلسل سے روانی مانگے، کشمیری بحر کی ہر آندھی پانی مانگے، کشمیری بحر کی ہر آندھی پانی مانگے۔ کہ سفر ریست میں تھکتے ہوئے آفاق سے بھی، سفر ریست میں تھکتے ہوئے آفاق سے بھی، سفر ریست میں تھکتے ہوئے آفاق سے بھی گردش قطرے خون جوش جوانی مانگے، گردش قطرے خون جوش جوانی مانگے۔ اور عکس تازہ میرا، آپ سب عکس تازہ میرا تنہائی میں اکثر مجھ سے، عکس تازہ میرا تنہائی میں اکثر مجھ سے دیکھنے کے لیے تصویر پرانی مانگے۔ عکس تازہ میرا تنہائی میں اکثر مجھ سے دیکھنے کے لیے تصویر پرانی مانگے، دیکھنے کے لیے تصویر پرانی مانگے۔ شوق اظہار سے خالی نہیں کوئی بھی ہے، شوق اظہار سے خالی نہیں کوئی بھی ہے، کالے سجدہ بھی زمینوں کے نشانی مانگے، کالے سجدہ بھی زمینوں کے نشانی مانگے، کالے سجدہ بھی زمینوں کے نشانی مانگے۔ شاعروں کے لیے شعر دیکھیے گا کہ خال و خط مصر اولا کے دیہوں کی دے، خال و خط مصر اولا کے دیہوں کی دے، یہ صفت شعر میں ہر مصر ثانی مانگے۔ خال و خط مصر اولا کے دیہوں دیدہ دیب، یہ صفت شعر میں ہر مصرع ثانی مانگے، یہ صفت شعر میں ہر مصرع ثانی مانگے۔ شعر دیکھیے گا سر مطلب یہ کہ کیوں نہ اس غزل کا پورا کا شعر ہے کہ کیوں نہ اس قامت زیبا پہ غزل لکھوں میں، کیوں نہ اس قامت زیبا پہ غزل لکھوں میں جس سے زلفوں کی مہک رات کی رانی مانگے، کیوں نہ اس قامت زیبا پہ غزل لکھوں میں جس سے زلفوں کی مہک رات کی رانی مانگے۔ رات خاموش لبوں سے بھی ہماری تہذیب، رات خاموش لبوں سے بھی ہماری تہذیب طرز اظہار میں شائستہ بیانی مانگے، طرز اظہار میں شائستہ بیانی مانگے۔ بہت بہت شکریہ رفیع الدین راز صاحب۔ آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کل کیلیفورنیا میں تھے اور وہاں کے دن کے 12 بجے ان کی فلائٹ تھی مشیگن کے لیے، جو کہ 4 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ مشیگن یہ رات کے 12 بجے پہنچے، پھر صبح 7 بجے سے ڈرائیو کر کے یہ مساگا پہنچے ہمارے درمیان۔ تو بے حد ممنون ہیں ہم لوگ تمام، جو کہ یہ ساتھی زندگی بہت کم ملتی ہیں جب اس قسم سے اس پیمانے کے اس کیلیبر کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ چائے وغیرہ لے لیجیے گا اور اس کے بعد فوراً شعری نشست شروع کرنی ہے۔ تھوڑی سی یہ نشست عام مشاعرے سے مختلف ہوگی اور چند جو ہمارے احباب قلم کے احباب ہیں انہوں نے والنٹری طور پہ ود ڈرا کر لیا اپنے آپ کو تاکہ باقی لوگوں کا کلام سنا جا سکے۔